Hello students, in my last video session I told you about the concept of colligative properties. We discussed that colligative properties are those properties which depends upon the number of solute particles, they never depends upon the nature of solute particles. यानी कि in simple terms में we can say कि colligative properties are quantitative in nature, they are not qualitative. Furthermore, we also discussed that there are four types of colligative properties which are named as the relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. And हमने ये भी डिस्कस करा था स्टूडेंट्स कि all these colligative properties they all serve a common significance. इन सभी का एक ही significance होता है कि with the help of these colligative properties we can easily determine the molar mass of the non-volatile solute. However, students, अपने last video session में we were just able to cover the first two colligative properties, which were the relative lowering in vapor pressure and the elevation in boiling point. But today, in this particular video session, we will discuss the remaining two colligative properties, which are the depression in freezing point and the osmotic pressure. Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. So students, let's start today's session with the discussion of depression in freezing point. Students, as you can analyze from this name कि depression in freezing point implies freezing point में depression आ जाना, एक decrease आ जाना, freezing point का reduce हो जाना. कब reduce हो जाता है ये freezing point? Whenever a non-volatile solute is added to a pure solvent. ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग यू कि इस चैप्टर में चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन का इफेक्ट बता रही हैं, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर. सभी प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ ये स्टडी करने जा रहे हैं कि जब एक प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आती हैं. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने लास्ट वीडियो सेशन में कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से वेपर प्रेशर में एक लोअरिंग आ जाती है, बॉइलिंग पॉइंट में एक एलिवेशन आ जाता है और अब हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट में एक डिप्रेशन आ जाता है और देखेंगे कि ये डिप्रेशन क्यों आ जाता है. बट स्टूडेंट्स, बिफोर वी एक्चुअली फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. आपको ये प्रॉपर्टी तभी समझ में आएगी स्टूडेंट्स जब आपको फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन मालूम है. So let me tell you the definition of freezing point students. याद रखिए students, freezing point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid phase becomes equal to the vapor pressure of solid phase. यानी कि कोई भी चीज उस टेम्परेचर पे उस पॉइंट पे फ्रीज होती है जब उस कंपाउंड का सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटर तब फ्रीज होगा जब वाटर का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा. अब स्टूडेंट, इस डेफिनेशन के पीछे लॉजिक क्या है, वाई वी फ्रेम्ड सच अ डेफिनेशन, इसको हम एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे. अब मैं आपको एक ग्राफिकल स्टडी करवाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, जिससे ना सिर्फ आपको यह पता चलेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्यों रखी गई, बट यू विल ऑल्सो बी एबल टू एनालाइज कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों होती है. So students, in order to understand the concept of depression in freezing point, let us consider this coordinate axis over the board. So students, as you can see, this is a pressure versus temperature axis, जिसमें y कोऑर्डिनेट पे हमने वेपर प्रेशर प्लॉट करा हुआ है और x कोऑर्डिनेट पे टेम्परेचर प्लॉटेड है. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेट एक्सेस पे रैंडमली एक पॉइंट मार्क कर देते हैं दिस, एंड लेट दिस पॉइंट बी इंडिकेटिंग प्योर वाटर केप्ट एट रूम टेम्परेचर. सपोज कीजिए ये प्योर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट एक्सेस के रेफरेंस में ये पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि जब इस वाटर का टेम्परेचर इतना होगा तो इस वाटर का वेपर प्रेशर इतना होगा. तो याद रखिएगा, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना होगा एंड लेट दिस बी द रूम टेम्परेचर स्टूडेंट्स. सो इमेजिन कीजिए कि दिस इज वाटर केप्ट एट रूम टेम्परेचर और अभी इसका वेपर प्रेशर ये है. अब आप सभी लोगों को मालूम है कि इफ वी ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को गर्म करें, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो एज यू कैन सी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसे बियॉन्ड रूम टेम्परेचर ले जाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा. सो ये पॉइंट ऊपर राइज करेगा. बट एज इन दिस केस वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स, तो आप इमेजिन कीजिए कि अब हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं बल्कि वाटर का टेम्परेचर कम करेंगे. इमेजिन करो कि अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर का टेम्परेचर कम करने से वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वाटर का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर्स बनेंगे तो कम वेपर प्रेशर जनरेट होगा. तो आप इमेजिन कीजिए दिस इज रूम टेम्परेचर, अभी वाटर का वेपर प्रेशर ये है, लेकिन अगर हम इस रूम टेम्परेचर से इसे ठंडा करते जाएं, कूल डाउन करते जाएं, तो ये वेपर प्रेशर नीचे फॉल करता जाएगा
एंड दिस पॉइंट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड लाइक दिस। तो इमेजिन कीजिए ये पॉइंट नीचे आता हुआ ये शो कर रहा है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। सो एज वी ग्रेजुअली डिक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। अब जस्ट इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, आप टेम्परेचर कम करते जा रहे थे, वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा था और वेपर प्रेशर कम होते होते एक स्टेज पे फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच गया। लेट दिस टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर TF0। सपोज कीजिए दिस वाज रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से हम ग्रेजुअली ठंडा कर रहे थे और कूल करते करते हम 0 डिग्री पे पहुंच गए। दिस 0 डिग्री कॉरस्पॉन्ड्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। बट इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी हम रुके नहीं, हम फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी और ठंडा करेंगे, वी विल स्टिल लोअर डाउन द टेम्परेचर। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी हम और ठंडा करेंगे, टेम्परेचर और कम करते जाएंगे, तो वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट के बियॉन्ड अगर हम और ठंडा कर रहे हैं तो हम वाटर को ठंडा नहीं कर रहे, हम आइस को ठंडा कर रहे हैं। अब अगर वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा तो अब वो आइस का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम इनिशियली वाटर लेकर चले थे एट दिस पॉइंट, एट दिस रूम टेम्परेचर, हम वाटर को ठंडा करते गए तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होता गया और वेपर प्रेशर कम होते होते एक स्टेज पे फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच गया। फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी हमने और ठंडा करा तो वेपर प्रेशर और कम हुआ और अब ये डिक्लाइनिंग ग्राफ डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर ऑफ आइस इंडिकेट कर रहा है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है और इस पॉइंट से नीचे नीचे डिक्लाइनिंग वेपर प्रेशर ऑफ आइस है। एंड एज पर द डेफिनेशन यू कैन सी कि दिस इज दैट मीटिंग पॉइंट, ये वो मीटिंग पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। एंड ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड अलग अलग होता है। वाटर का वेपर प्रेशर किसी और रेट से डिक्रीज होता है, आइस का वेपर प्रेशर किसी और रेट से डिक्रीज होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में यहां पे एक ब्रेक आ गया, जिस स्लोप से ये वाटर का वेपर प्रेशर ग्राफ डिक्रीज हो रहा था उससे डिफरेंट स्लोप से ये आइस का वेपर प्रेशर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। सो आई होप एटलीस्ट इतने ग्राफ से आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, वापस इस रूम टेम्परेचर पे आते हैं और इमेजिन कीजिए कि इस रूम टेम्परेचर पे वाटर के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। अब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाती है, यानी कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर जो इतना था अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो ये नीचे फॉल कर जाएगा। तो इमेजिन कीजिए कि हमने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करा और ये पॉइंट नीचे ड्रॉप कर गया। ये पॉइंट कितना नीचे ड्रॉप करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सॉल्यूट ऐड करा है। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतनी ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में आएगी और ये पॉइंट उतना नीचे फॉल कर जाएगा। अब याद रखिएगा रूम टेम्परेचर पे ही ये पॉइंट एक ऐसी सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है जिसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा जा चुका है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू प्योर वाटर केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू सॉल्यूशन केप्ट एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है। अब हम इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। बट स्टूडेंट, इससे पहले कि हम इसका ग्राफिकल वेरिएशन देखें, यू शुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको ये आगे का ग्राफ तभी समझ में आएगा जब आप सब लोगों को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब मालूम होगा। स्टूडेंट्स, दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को बस ये लगता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपराइज नहीं होता, जो बॉयल ऑफ नहीं होता। ऑल्दो दिस इज करेक्ट, ये ठीक है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपराइज नहीं होता, बट याद रखिएगा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिस तरह से बॉयल ऑफ नहीं होता या वेपराइज नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीज भी नहीं होता। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ना बॉयल होता है ना फ्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आप शुगर सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो आप सिर्फ वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, शुगर को नहीं फ्रीज कर रहे हैं, बिकॉज शुगर इज ऑलरेडी अ सॉलिड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीज भी नहीं होता और यही कंसेप्ट माइंड में रखते हुए आगे का ये वेरिएशन देखिए। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप इमेजिन कीजिए कि इस सॉल्यूशन का जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम होता जा रहा है और वेपर प्रेशर कम होते 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 आप देखेंगे अल्टीमेटली एक पॉइंट पे दिस विल टच द वेपर प्रेशर ग्राफ ऑफ आइस। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होते होते आइस के वेपर प्रेशर को टच कर गया और जिस टेम्परेचर पे ये टच करा
उस टेम्परेचर को हम कंसिडर करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब फाइंड आउट करते हैं कि इस टेम्परेचर को हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कंसिडर कर लिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता, यानी कि जब हम एक ऐसी सॉल्यूशन को फ्रीज करेंगे जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसके अंदर भी सिर्फ सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा, सॉल्यूट तो फ्रीज नहीं होगा। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सॉल्वेंट तब फ्रीज हो जाता है जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इमेजिन कीजिए स्टूडेंट, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर। तो जब हम इस सॉल्यूशन को ठंडा कर रहे थे तो इसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा था, और वेपर प्रेशर कम होते होते जहां पे ये आइस को टच करा वहां हम कंसीडर करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर का सारा वाटर फ्रीज हो गया होगा, क्योंकि वाटर वहां फ्रीज हो जाता है जहां वो आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। और अगर इस पॉइंट पे इस सॉल्यूशन के अंदर का सारा वाटर फ्रीज हो गया तो हम मान लेंगे कि पूरी सॉल्यूशन ही फ्रीज हो गई, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट तो वैसे भी नहीं फ्रीज होना, सॉल्वेंट का फ्रीज होना ही सॉल्यूशन का फ्रीज होना है। तो आप देख सकते हैं जहां पे भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ आइस के वेपर प्रेशर ग्राफ को टच करेगा उस पॉइंट पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन के अंदर का सारा वाटर फ्रीज हो गया होगा और हम मान लेंगे कि पूरी सॉल्यूशन ही फ्रीज हो गई। सो यू कैन क्लियरली सी इट फ्रॉम द ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से पीछे मिलता है, और अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर के फ्रीजिंग पॉइंट से पीछे मिल रहा है तो इनके बीच का ये जो गैप है, दिस डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TF, एंड वी कैन से कि दिस डेल्टा TF is TF naught minus TF. So this is the depression in freezing point. और स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कितना पीछे मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करा था। जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस पॉइंट पे वाटर में ऐड करते ये पॉइंट उतना नीचे ड्रॉप करता, और अगर ये पॉइंट और नीचे ड्रॉप करता तो और पीछे जाके आइस के ग्राफ को टच करता, और अगर पीछे जाके आइस के ग्राफ को टच करता तो और ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता। सो नाउ वी नो कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन इसलिए आता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाती है। सो दिस होल चैप्टर इज कनेक्टेड टू द कांसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स। वेपर प्रेशर में लोअरिंग आने की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया और उसी की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आएगा ये डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा था। सो जस्ट लाइक द बॉइलिंग पॉइंट, हियर आल्सो वी कैन से कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, वेयर मोलैलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट। और याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां पे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे। दैट कांस्टेंट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into m। सो जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट में Kb यूज करा था विच इज द एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ पे KF यूज करा जाता है, और इस KF के तीन नेम्स होते हैं। आइदर इट इज सिंपली नेम्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसका तीसरा नाम होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आवर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन। यहां पे डेल्टा TF रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, KF इज द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी, एंड मोलैलिटी, स्मॉल m इज मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बनाई। अब फाइनली स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस होता है कि उनकी हेल्प से मोलर मास निकाला जा सकता है। तो देखते हैं कि इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से मोलर मास कैसे निकाला जा सकता है। उसके लिए वी नीड टू जस्ट एक्सपेंड दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हमें मोलैलिटी के एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना होगा। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी द सिग्निफिकेंस हियर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू m। अब इस एक्सप्रेशन में हम मोलैलिटी के फॉर्मूले को ओपन करेंगे। तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में होता है तो ऊपर 1000 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हम नंबर ऑफ मोल्स को NB को फर्दर ओपन करेंगे। सो दिस विल बिकम KF इंटू WB अपॉन MB। नंबर ऑफ मोल्स की जगह स्टूडेंट्स हमने रख दिया WB अपॉन MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास, डिवाइडेड बाय दिस WA इंटू 1000। So this is an expression for delta TF, and finally students, हम MB को इधर ले जाएंगे और delta TF को नीचे, तो MB की टर्म्स में हमारे पास फाइनली एक एक्सप्रेशन आ जाता है KF
into WB into 1000 divided by delta TF into WA. So this is the significance of our third colligative property. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से मोलर मास इन फॉर्मूलेज को यूज करके निकाला जाएगा. So students, this was the third colligative property. Now let's move on to the fourth colligative property. So our fourth colligative property in the sequence is osmotic pressure. Fourth colligative property का नाम है osmotic pressure. But students, before we start discussing the concept of osmotic pressure, you should know the meaning of osmosis. ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मीनिंग आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ऑस्मोसिस का मीनिंग मालूम है. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस. स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है. ऑस्मोसिस कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब स्टूडेंट्स, इस ऑस्मोसिस के डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट कंसिडर करते हैं. Let us consider this diagram over the board. Students, in this diagram you can see there is a container filled with water and within that container we have placed an inverted thistle funnel. एक inverted thistle funnel हमने water में dip करी हुई है and the mouth of the funnel has been closed by a semi permeable membrane. हमने funnel के mouth को semi permeable membrane से close करा हुआ है and within this funnel we have a sugar solution. तो एक शुगर सॉल्यूशन से भरी हुई फनल को इन्वर्टेड फॉर्म में हमने वाटर से भरे हुए कंटेनर के अंदर इमर्स करा हुआ है. एंड यू कैन सी कि ओरिजिनली फनल के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो यहां तक है. सो स्टूडेंट, इमेजिन कीजिए कि अगर आप इस apparatus को इसी अरेंजमेंट में कुछ देर के लिए छोड़ के चले जाएं और कुछ देर बाद आकर देखें तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि ओरिजिनली जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल आपने यहां तक छोड़ा था फनल के अंदर, यू विल ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन दैट कॉलम. आप देखेंगे कि कॉलम के अंदर हाइट इंक्रीज हो जाएगी शुगर सॉल्यूशन के लेवल की. तो आपने ओरिजिनली शुगर सॉल्यूशन का लेवल यहां तक लिया था, लेकिन अगर इस अरेंजमेंट में इस apparatus को कुछ देर के लिए छोड़कर चले जाएं तो आप देखेंगे कॉलम के अंदर हाइट इंक्रीज हो जाती है. शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो पहले यहां तक था वो कुछ देर में यहां तक पहुंच जाएगा. अब इससे क्या कंक्लूड होता है स्टूडेंट्स, अगर कुछ देर के अंदर कॉलम के अंदर लेवल इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली इट इंप्लाइज कि बाहर से कुछ वाटर माइट हैव एंटर्ड इनसाइड द ट्यूब. देयर इज नो अदर प्रोबेबल रीजन कि ये कॉलम की हाइट क्यों बढ़ गई होगी. दिस कैन ओनली बी ड्यू टू द फैक्ट कि बाहर से वाटर फनल के अंदर एंटर कर गया होगा. अब स्टूडेंट्स, अगर बाहर का वाटर अंदर एंटर कर रहा है तो दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस. मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बाहर के सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यही ऑस्मोसिस है स्टूडेंट्स. ऑस्मोसिस में हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूट पार्टिकल्स कभी मूव नहीं करते, सॉल्वेंट मूव करता है और सॉल्वेंट हमेशा कम सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट की तरफ मूव करता है. यानी कि एक लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से एक मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है. अब स्टूडेंट्स, इस ऑस्मोसिस से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज होते हैं. पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वाटर अंदर जा ही क्यों रहा है. ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वाटर अपने ही बीकर में प्रेजेंट रहे, शुगर अपनी फनल में प्रेजेंट रहे, कोई किसी तरफ जाए ना. तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस लॉजिक कि ये वाटर अंदर जा ही क्यों रहा है. और दूसरा हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि ये वाटर अगर अंदर जा रहा है तो ये कब तक अंदर जाएगा. क्या ये पूरा बीकर खाली हो जाएगा या बीच में किसी स्टेज पे ये वाटर अंदर जाना बंद हो जाएगा. तो हम दो क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. पहला ये कि ये वाटर अंदर कब तक जाएगा और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये वाटर अंदर जा ही क्यों रहा है. तो पहले ये फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स कि ये वाटर कब तक अंदर जाएगा. क्या आप मानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये वाटर इस मेम्ब्रेन के थ्रू एक इनवर्ड एंट्री ले रहा है तो डेफिनेटली ये वाटर मेम्ब्रेन के सरफेस पे एक अपवर्ड प्रेशर लगा रहा होगा. और अगर वाटर मेम्ब्रेन पे एक अपवर्ड प्रेशर लगा रहा है एंट्री लेने के लिए तो फिर इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर जितना प्रेशर वाटर नीचे से ऊपर जाने के लिए लगा रहा है उतना ही प्रेशर हम ऊपर से नीचे की तरफ लगा दें, द इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर, तो हम वाटर के इस इनफ्लो को रोक सकते हैं. तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वाटर का ये इनफ्लो रोका जा सकता है अगर उतना ही प्रेशर जितना वाटर नीचे से ऊपर जाने के लिए लगा रहा है उतना ही प्रेशर हम ऊपर से नीचे की तरफ लगा दें. और ये प्रेशर लगाने का एक तरीका तो होता है कि हम इस फनल के अंदर एक छोटा सा पिस्टन अप्लाई कर दें और उस पिस्टन को मैनुअली प्रेस करके उतना ही प्रेशर लगा दें जितना वाटर नीचे से लगा रहा है, तो हम ऑस्मोसिस को टाइम से पहले ही रोक सकते हैं. बट स्टूडेंट्स, एक और तरीका है ऑस्मोसिस के रुकने का. आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर वाटर इस प्रेशर के इन्फ्लुएंस में अंदर जाता रहेगा तो अंदर जाने की वजह से कॉलम की हाइट धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और अगर ये कॉलम की हाइट ऊपर से बढ़ती रही
तो डेफिनेटली इस कॉलम में जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो भी बढ़ेगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ऊपर से लगने वाला एक डाउनवर्ड प्रेशर भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओरिजिनली शुगर सॉल्यूशन का लेवल हमने यहां तक लिया था, लेकिन अगर फनल के अंदर सॉल्यूशन की अमाउंट बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ऊपर सॉल्यूशन का मास बढ़ता जा रहा है, तो उस इंक्रीज्ड मास की वजह से ये सॉल्यूशन और ज्यादा डाउनवर्ड प्रेशर लगाने लगेगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ऊपर से सॉल्यूशन का मास बढ़ते बढ़ते ऑटोमेटिकली उतना प्रेशर लगने लग जाएगा जितना वाटर नीचे से अंदर जाने के लिए लगा रहा है। और जब ऊपर से सॉल्यूशन खुद ही उतना प्रेशर लगाने लग जाएगी जितना वाटर अंदर जाने के लिए लगा रहा है, तो ऑस्मोसिस नेचुरली रुक जाएगी स्टूडेंट्स, फिर हमें इस टाइप का कोई पिस्टन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वाटर की इस इनफ्लो को रोकने के लिए जितना भी प्रेशर सॉल्यूशन में ऊपर से लगाया गया, that pressure is called the osmotic pressure. Osmotic pressure is the minimum amount of pressure which must be applied from the solution side in order to stop the flow of solvent molecules, in order to stop osmosis. और यही osmotic pressure हमारी colligative property है। इस osmotic pressure को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। So students याद रखिएगा, osmotic pressure is the minimum pressure which must be applied from the solution side in order to stop osmosis. Osmosis में solvent के inflow को रोकने के लिए more concentrated solution side से जितना ज़्यादा pressure लगाना पड़ता है, उस pressure को ही osmotic pressure कहते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं कि osmotic pressure colligative property कैसे है। स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन का आंसर तो फाइंड आउट कर लिया कि ये वाटर कब तक अंदर जाएगा। ये वाटर तब तक अंदर जाएगा जब तक इस वाटर के इनफ्लो को रोकने के लिए इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर दूसरी तरफ से ना लगा दिया जाए, और वो इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर हम पिस्टन के थ्रू भी लगा सकते हैं, या कुछ देर में सॉल्यूशन का बढ़ता हुआ लेवल और उसका बढ़ता हुआ मास खुद ही लगाने लग जाएगा। बट अभी भी हमें एक क्वेश्चन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कि ये वाटर अंदर जा ही क्यों रहा था। सो दैट हैज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। आप इमेजिन कीजिए कि अगर जितनी कंसेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन हमने फनल के अंदर ली है, उतनी ही कंसेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन अगर हम बाहर भी लेते, या जैसा वाटर हमने बाहर लिया है अंदर भी हम वाटर ही ले लेते, तो क्या आपको लगता है कि कोई चीज कहीं मूव करती? डेफिनेटली नहीं। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर दोनों तरफ कंसेंट्रेशन एक जैसी होती तो कभी कोई सॉल्वेंट कहीं मूव ही नहीं करता। तो दैट्स अ वेरी सिंपल केस कि इसका मतलब वाटर इसलिए मूव कर रहा है बिकॉज देयर इज अ कंसेंट्रेशन डिफरेंस ऑन आइदर साइड ऑफ दिस मेम्ब्रेन। एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है स्टूडेंट, एक कंसेंट्रेशन डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और उस कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही वाटर में एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उस कंसेंट्रेशन डिफरेंस को खत्म कर लेने की, एंड दैट्स व्हाई वाटर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंसेंट्रेशन डिफरेंस होगा, वाटर का रेट ऑफ इनफ्लो भी उतना फास्ट होगा, क्योंकि वाटर या कोई भी सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही फ्लो कर रहा है। अगर कंसेंट्रेशन दोनों तरफ एक जैसी होती तो सॉल्वेंट फ्लो भी नहीं करता। तो अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही वाटर इनफ्लो हो रहा है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है स्टूडेंट्स। इमेजिन कीजिए कि अगर हम इस फनल के अंदर और शुगर ऐड कर दें तो अंदर की शुगर सॉल्यूशन और ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाएगी, और अगर अंदर की शुगर सॉल्यूशन और ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो गई तो वाटर का रेट ऑफ इनफ्लो और फास्ट हो जाएगा। और अगर वाटर का रेट ऑफ इनफ्लो और फास्ट हो गया तो उस फास्ट इनफ्लो को रोकने के लिए हमें ऊपर से और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हमें ऊपर से कितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अंदर कितनी हाई कंसेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी अंदर, वाटर का रेट ऑफ इनफ्लो भी उतना फास्ट होगा, और उस फास्ट फ्लो को रोकने के लिए हमें ऊपर से उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर is also a colligative property. It depends upon the amount of solute added within this solution. So जो भी चीजें solute के amount पे डिपेंड करती हैं, solute के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उन्हीं को हम colligative properties बोलते हैं। So I hope students आपको osmosis और osmotic pressure दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब फाइनली जब हमने ये पता लगा लिया कि osmotic pressure is a colligative property, it depends upon the amount of solute. So in this case we can say कि pi is directly proportional to molarity. पाई मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप कुछ बुक्स में स्टूडेंट्स इस रिलेशनशिप को ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। यहाँ पे सी भी कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वाइल डीलिंग विद द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों एक्सप्रेशंस में डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ को हमने मोलैरिटी डिपेंडेंट लिया था। तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हम मोलैरिटी क्यों ले रहे हैं, मोलैलिटी क्यों नहीं ले रहे? सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू अ डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन देखें तो याद रखिएगा मोलैरिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होता है मोलैलिटी से, और बड़े मैग्नीट्यूड की वजह से मोलैरिटी मेजर करना हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इसकी वैल्यूज़ हम ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर मोलैरिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है और इसे मेजर करना कन्वीनियंट होता है तो फिर यहां हमने मोलैरिटी क्यों नहीं ली? तो यहां हमने मोलैरिटी इसलिए नहीं ली स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पे वी वर डीलिंग विद टेम्परेचर्स। हम किसी चीज को बॉईल कर रहे थे या किसी चीज को फ्रीज कर रहे थे, यानी कि हम टेम्परेचर में वेरिएशंस ला रहे थे और टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ मोलैरिटी चेंज हो सकती है, इसलिए हम यहां पे मोलैरिटी नहीं लेते, हमें मजबूरी में मोलैरिटी लेनी पड़ती है। लेकिन जहां पे हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्कआउट करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑस्मोसिस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अकर करने वाला प्रोसेस है। ऑस्मोसिस के टाइम पे टेम्परेचर वेरिएशंस अपने आप नहीं होते, इसलिए यहां पे हमें ये डर नहीं है कि ये कंसंट्रेशन वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां पे हम मोलैरिटी लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि मोलैरिटी बीइंग बिगर इन मैग्नीट्यूड कैन बी मोर कन्वीनियंटली एंड मोर एक्यूरेटली मेजर्ड। एंड फाइनली स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस फॉर्मूले में हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं तो ये हो जाता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, where R and T are the constants. R is the universal gas constant and T is the temperature at which this process is taking place. So this is the formula of our fourth colligative property. ये है हमारी fourth colligative property. Now let's discuss the significance of this fourth colligative property, students. अब हम इस fourth colligative property का significance discuss करते हैं। मैंने आपको बताया कि चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही कॉमन सिग्निफिकेंस होता है कि उनके हेल्प से मोलर मास निकाला जा सकता है। तो देखते हैं इसके हेल्प से मोलर मास कैसे निकाला जाएगा। वी नो कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इस एक्सप्रेशन में सी मोलैरिटी को रेफर कर रहा है, तो हम इस मोलैरिटी के फॉर्मूले की जगह लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर इंटू 1000 भी करेंगे इंटू आर टी। सो C की जगह हमने ये एक्सप्रेशन पुट कर दिया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब इस एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम फर्दर ओपन करें तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 1000 इंटू RT। अब फाइनली स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में इस MB को इधर ले जाते हैं और पाई को नीचे ले जाते हैं, तो MB इज इक्वल टू WB इंटू R into T into 1000 divided by pi into V. So this becomes the significance of our fourth colligative property, osmotic pressure. So students, आपने देखा हमने चार colligative properties discuss करी, the relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। और चारों ही colligative properties के थ्रू हमने 4 MB के फॉर्मूले भी डिराइव करे, क्योंकि चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही कॉमन सिग्निफिकेंस होता है कि उनकी हेल्प से मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैलकुलेट करा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन लेट अस फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होती है। ऑस्मोसिस को एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन करना हमारे लिए पॉसिबल है। उसके लिए लेट अस कंसिडर दिस डायग्राम ओवर द बोर्ड। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ क्लोज्ड कंटेनर और उस कंटेनर के सेंटर में वी हैव प्लेस्ड अ पार्टीशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की शॉर्ट फॉर्म होती है SPM। सो देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन देयर इज अ शुगर सॉल्यूशन। इधर भी शुगर सॉल्यूशन है, इधर भी शुगर सॉल्यूशन है, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। लेफ्ट साइड वाले कंपार्टमेंट में वी हैव टेकन अ लेस कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, रिलेटिवली डाइल्यूट है, C1 कम है, और राइट साइड वाले कंपार्टमेंट में वी हैव टेकन अ मोर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन C2। अब स्टूडेंट्स, हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो अलग अलग कंसंट्रेशन की शुगर सॉल्यूशन सेपरेट कर देते हैं तो क्या इस केस में ऑस्मोसिस होगी, और अगर होगी तो कहां से कहां होगी। सो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में यहां पे लेस कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। एक लेस कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स याद रखिएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, and a more concentrated sugar solution is also known as a hypertonic solution। तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड वाले कंपार्टमेंट में वी हैव अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें वाटर ज्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन
इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स वी नो कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब इस केस में ऑस्मोसिस इधर से इधर होगी। ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम C1 टू C2। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब तक होगी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सॉल्यूशन प्रेजेंट होती है, जब दोनों ही तरफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तो फिर उस केस में हमें प्रेशर के इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं होती। इस केस में वी कैन सिंपली से, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इधर का वाटर इधर जाएगा तो फिर ग्रेजुअली ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होने लगेगी और ये कंसंट्रेट होने लगेगी, और विद द फ्लो ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल इनका कंसंट्रेशन डिफरेंस कम होने लगेगा, और ऑस्मोसिस होते होते एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। उस वक्त सिस्टम एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, क्योंकि जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है तो ये याद रखिएगा उस वक्त जितना प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर जाने के लिए लगाएंगे उतना ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर आने के लिए भी लगाने लग जाएंगे, और जब दोनों तरफ से बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर लगने लगेगा तो फिर नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहीं भी नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टिल देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, तब तक तो ऑस्मोसिस चलेगी, लेकिन जब ये कंसंट्रेशन डिफरेंस खत्म हो जाता है और दोनों सॉल्यूशन बराबर कंसंट्रेशन पे आ जाती हैं तो ऑस्मोसिस का नेट फ्लो रुक जाता है बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा, जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, तो इट इंप्लाइज कि π1 इज इक्वल टू π2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसी सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है और जिसकी वजह से दोनों तरफ प्रेशर भी बराबर हो जाता है, ऐसी सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस को एक ऑल्टरनेटिव वे में इस तरह से डिफाइन करा जा सकता है कि ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल बोथ द सॉल्यूशन बिकम्स आइसोटोनिक। सो स्टूडेंट्स, ये ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी याद रखिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एंड विद दिस डेफिनेशन वी विल फाइनली रैप अप टुडेज वीडियो सेशन। आज के इस वीडियो सेशन में मैंने आपको रिमेनिंग 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करवाई, एंड विद दिस हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। In our next upcoming session, we will discuss the applications of this osmosis. We will also discuss the Henry's law and the concept of reverse osmosis. Till then, have a good day, be home, be safe. Thank you.